Good everyone from Dubai. This is Yusuf Hidali and I have my co-host Murtaza Yusuf with me. और आज जो है हम बहुत ही हल्का फुल्का. Hi Murtaza, how are you? I'm good. I'm just sitting Murtaza, next beside you in the other room. Murtaza, we have some amazing guests today. They're celebrity guests and they're already here in our studio. So let's not waste further time and we'll just introduce them. All right. Yeah? Okay. So our first guest for today is Mr. Anil Trivedi. He's a radio personality for 20 years. He's a sound production engineer. He's a voice-over artist for radio ads. He does MC for most of the corporates of Dubai. And he has hosted more than 1,500 shows. He's also a singer. So we can have Mr. Anil on screen, please. Thank you. Assalamu alaikum, sir. कैसे हैं sir? Good evening, Murtaza bhai and Yusuf bhai. Thank you so much. और इतना प्यारा इंट्रोडक्शन जो आपने दिया, तो thank you so very much. And I really want to thank you. Please. आधी से ज़्यादा चीजें तो हमने कट कर दी. There is a lots in your portfolio. So we said okay, just shorten it up. But seriously, I really want to thank you first of all for having me on the show, and secondly, I really hope कि आज का show बहुत बढ़िया हो, because we have other two great guests. I mean, some amazing talents who are going to join us. So thank you again. Thank you very much, and to all the viewers as well. Those who are going to join us and those who have joined us. I hope it's going to be a fun evening. Thank you. अनिल भाई आपसे बहुत सारी बातें करेंगे and अभी हम इंट्रोड्यूस करते हैं बाकी गेस्टों को. So our next guest for today is Miss Meghna from Mumbai. She has been working in the film industry for past 30 years. She does Marathi TV shows, she does Marathi movies, Hindi movies. She does dubbing for Hollywood movies like Independence Day, Twister, The Lost World, Frozen, Kung Fu Panda. इसके अलावा बच्चों के जो कार्टून्स होते हैं, निंजा हथौड़ी, पेपा पिग, बॉब द बिल्डर, ये सारे वो उसके वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं. एंड शी इज आल्सो एंकर. शी डज लाइव इवेंट्स, कॉन्सर्ट, फेस्टिवल, अवार्ड्स. आई डोंट नो वेदर शी गेट्स ऑल द टाइम टू डू ऑल दिस थिंग्स. कैन वी हैव मिस मेघना? Hi. How are you? Hi, Miss Meghna. So good to see you all. Hi. Hello. मिस मेघना, आपकी इतनी बड़ी प्रोफाइल है, आपके पास टाइम कैसे मिलता है इतना सब कुछ करने के लिए? मुझे पढ़ने के लिए इतना वक्त लग गया. जब मैं छोटी थी तब से शुरू कर दिया तो अब तक हो गया. मेघना जी, आपके साथ भी हम बहुत सारी बातें करेंगे एंड विल इंट्रोड्यूस आवर थर्ड गेस्ट एंड देन हम सब साथ में बात करेंगे. Our third guest for today he is a doctor by profession, but this person is man of so many talents. मुझे याद है मैंने इनका इंडियन आइडल का ये देखा था ऑडिशन, and this guy, he blew our mind. That video went viral. It got 10 million views and suddenly this guy became a sensation. He can mimic more than 30 celebrities. He does voiceover for Hrithik Roshan, Aamir Khan, Tiger Shroff in Marathi. He's a singer, dancer, he's a performer. He's also a social media celebrity. Can we have Dr. Sumed Shinde? Hi. Thank you so much. Hi, Dr. Saab. Thank you so much for the lovely introduction. डॉक्टर सुमेध, आपसे भी बहुत सारी बातें करनी है हमें. सवाल मुझे अनिल सर से पूछना है. जी सर. दुबई में आपको पता है हम लोग के यहाँ 200 नेशनैलिटीज है और उनके सामने आपको परफॉर्म करना है, तो हर आदमी का ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर का जो लेवल होता है वो अलग अलग रहता है और लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग रहती है. कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि कुछ प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि आपको लगा कि मेरा लास्ट शो है आज का? Yes, बिल्कुल हुआ है. ऐसा क्यों नहीं हुआ? आई एम श्योर सब आर्टिस्ट की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा एक टाइम आता है. हाँ, ऑफ कोर्स 200 नेशनैलिटीज हैं यहाँ पे यूएई में, तो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग. बिहार के हैं, यूपी के हैं या कहीं से भी हैं, तो उनको नहीं समझ आई. तो यू हैव टू कन्वे द मैसेज एट द सेम टाइम. वो जो ह्यूमर आपने किया, वो जो आपने जो भी फनी लाइन्स बोली, यू हैव टू इंस्टेंटली मेक श्योर कि वो सबको समझ में आए. या बांग्लादेशी भाई लोग होते हैं तो हम लगा वो थोड़ा वो हमारा दादा आपका बहुत इज्जत करता है, हमारा एक्टर बोलेगा हमारा बांग्ला आदमी देखा हमारा दिल एकदम ऐसा खुश हो जाता है, हमारा बहुत अच्छा लग रहा है. तो बंगाली बड़े खुश किया, अरे यार ये तो अपना ही बंदा है. डॉक्टर सुमेध, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि जो मिमिक्री करता है और आप 30 सेलिब्रिटीज के साथ मिमिक्री करते हो, आप मिमिक्री करने वाला बंदा ऑब्जर्वेशन स्किल्स का बहुत स्ट्रांग रहता है और
आपको कब पहली बार लगा कि आप मिमिक्री कर सकते हो और आपको यही करना चाहिए? So actually, मैं स्कूल से करता हूँ मिमिक्री, and it started with आमिर खान की मिमिक्री मैंने शुरू की थी right from like रंगीला release. So you know, like even like जब when I was a student तभी भी you know my uncle had an orchestra. तो उस ऑर्केस्ट्रा में देखता था बहुत से कॉमेडियंस आते थे, बहुत से सिंगर्स आते थे, तो तब से टू बी ऑन स्टेज वाज समथिंग व्हिच आई ऑलवेज वांटेड टू. एंड देन वही प्लेस रंगीला वाज द फर्स्ट मूवी जिससे मुझे लगा कि मैं मिमिक्री कर सकता हूँ. सो आमिर खान वाज द फर्स्ट एक्टर, दैट वाज द फर्स्ट टाइम. एंड देन फिर स्कूल से, फिर कॉलेज में, फिर एक बार करके दिखाइए आमिर खान की. आमिर खान का मैं तो बोलूँगा कि उसका फेमस जो है वो फ्रॉम तारे ज़मीं पर ही की चकरा का ची चाय चो चकलो रम गंडो वंडो लग लग टम अक्को टक्को एडी गिडी गिडी को एडी पाई विडी पाई चिक चिक चो गिली गिली मत सुल सुल मल मकना को हुक पुकरे टुक पुकरे चकला का बिक्को चिक्को सिली 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 को परदुम दरदुम चिक चिक चो. थैंक यू वेरी मच. मेघना जी, आप तो बचपन से कर रहे हो ये. Yes. That was too good, Sumedh. Really amazing. थैंक यू. आमिर खान से भी ज्यादा अच्छा था. मेघना जी, आप देखिए, किसी को रुलाना बहुत आसान है स्क्रीन पे, लेकिन किसी को हंसाना कहते हैं बहुत मुश्किल है. और आपको तो मेरे बच्चे आपके वायरल वीडियोस देखते हैं. आप निंजा हथौड़ी, वो पॉप बिल्डर है, इसकी जो एक वीडियो निकली थी, हम लोग ने पूरी फैमिलीज में सब सर्कुलेट हुई थी, बहुत लोगों ने देखी थी. तो हाउ, आई मीन, आपको कैसा लगता है जब बच्चे आपको देख के खुश होते हैं एंड दे आर लाइक दे आइडेंटिफाई दिस वॉइस, यू नो, इमीडिएटली उनके, हाउ डू यू फील? आई थिंक इट्स अ प्लेजर. और छोटे बच्चों से अगर रिस्पॉन्स मिलता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है. और आई एम अ मदर ऑफ 8-year-old kid. सो अगर मेरी बच्ची हंसती है तो मुझे इतना अच्छा लगता है. तो इतने सारे बच्चे हंसते हैं तो मुझे लगता है मुझे तो दुआएं मिलती होंगी. आपको पता है काफी बच्चे अभी आपको देख रहे हैं लाइव, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? या नॉडी, यू लाइक नॉडी करूं? एनीथिंग. मैं हूँ छोटा नॉडी, फिर मैं चाहूँ तो इतने सारे नॉडी से क्या ऐसा जो ना हो, जो होगा ये दिन पूरा तो कर लूंगा ये काम, इतने सारे नॉडी से मुश्किल हो जाए आसान. हेलो विगेस, कहाँ जा रहे हो? वाह, वेरी गुड, सुपर, ब्रिलियंट. Thank you. Yusuf, one second. I have one question in general. When you asked her this thing कि बच्चों के साथ comedy and everything is very difficult, I would like to ask all of you कि generally comedy तो itself is a very difficult task to do. What do you think? Who is सबसे ज़्यादा मुश्किल किसके लिए होता है? I mean, to make someone laugh, kids, adults या old age people? Yes, what do you say, Dr. Sir? आप बताइए. See, actually, kids difficult तो है ही. Kids क्या करना difficult है, but then it is not about just kids. It's about sometimes you never know कि आपका age group क्या है. Like for example, the kind of work I do, okay, every comedian they have their own audience, okay, उनका हर एक audience है. Even if you are in like my age, क्योंकि फिर भी मैं you know like जो मेरा age group है उनसे connect करूँगा, जो 90s के गाने सुनते हैं या जो 90s का humor जिनको पता है, जो I could connect with them more. Rather than, because see, for example, अभी जो the kind of comedy which is happening, sometimes I don't connect also. Like, you know, I can't say, मेरे मुंह से bro निकलता ही नहीं है. क्या bro क्या कर रहा है? मेरे को bro बोल नहीं सकता मैं. You know, it becomes very difficult. My lingo is different. तो हो सकता है कि मेरा एक अलग age group जिसका मैं connect करता हूँ. Connect, it is all about the connect. Like, you know, even आप Facebook पे भी बोलते हैं कि आपका audience जो है वो क्या target audience आपको select करना है. For me, my age group जो है उसमें मैं connect कर पाता हूँ basically. So it is not about कि बच्चे हैं या बूढ़े. There is always like कोई ना कोई तो उसका जो connect होगा, बाकी सबका थोड़ा difficult है. But then, of course, you know, बच्चे तो definitely it is difficult. But again, I would not completely agree कि बच्चे ही difficult है करके. But for me, I think Dr. साहब मेरे events में क्या है कि it's more of interaction in between the crowd. Yeah. लोगों के बीच में जाना है. Right. 3,000-2,000 लोग हैं. Problem कहाँ आती है? बच्चे, yes, of course, is the most difficult for me. क्योंकि वो एक तो छोटे बच्चे हैं, आप उनको कुछ कह नहीं सकते. उनके माँ बाप देख रहे हैं वहाँ से. आप उनको नाराज ऐसे बोल नहीं सकते क्यों. और वो क्या they'll keep circling, भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. तो आपका जो आप कुछ ह्यूमर लाइन मार रहे हो, कुछ ह्यूमर कर रहे हो.
सडनली पूरा आपका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, पंच खत्म हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे ना सडनली पीछे आपके आके एक दो बार तो ऐसे, कितना बार ऐसा हुआ है कि वो माइक छीनने लेंगे। अरे कितनी बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है पेरेंट्स को कि अब अगर आपके बच्चे को प्लीज लेके जाइए, लेकिन भाई ये तो अर्थक्वेक के जैसा है यार, सुनते ही नहीं है माँ बाप की नहीं। तो मन में तो बहुत आ रहा होता है कि यार इसको बाहर निकल के ना धो के सुखा दूं, लेकिन बट प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप सामने बैठे हुए, अब आप बोल भी नहीं सकते हो, मुस्कुराते भी रहोगे, और वो आके पैंट खींचने कभी आपके आके कभी कुछ बजा, तो उनको कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट है यार। तो मैं पहले ही अपने क्लाइंट्स को बोल देता हूँ कि इफ यू हैव किड्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको एक सेपरेट, हम कहीं बैंक्वेट हॉल में उनको एक सेपरेट अरेंजमेंट कर देंगे, वी विल डू समथिंग, कुछ वी विल हैव सेपरेट अरेंजमेंट, लेकिन इसमें मत घुसाना, क्योंकि फिर उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। सो आई थिंक चिल्ड्रन ऑफ कोर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। बच्चे तो बच्चे हैं, तो ऑफ कोर्स यू कैन डू एनीथिंग। डॉक्टर सुमित, आपकी एक वीडियो थी जो एक टीवी चैनल पे टेलीकास्ट हुई थी, मैं वो अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ। कैन वी हैव द वीडियो ऑन द? This is one of the best Ajay Devgan mimicry we have ever seen. I mean, amazing Sumit bhai, amazing, brilliant. Thank you so much. Thanks a lot. Amazing, और ये सब तो मेरे को लगता है अंडरस्टेटमेंट है सुमित भाई, सीरियसली है ना? नहीं, ऐसा कुछ very thank you. सुमित भाई, इंडिया में आपको पता है इतने सारे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, आपको पता है कि हर घर में कोई ना कोई किसी की मिमिक्री करता है। What is that one thing that differentiates you from the rest? Because आपकी देखा है that you are very good, you're really good. Indian Idol वाला भी जो वायरल हुआ था वो बहुत अच्छा था आपका। You could do Amir Khan, Hrithik Roshan, you could just go on and on and on. How does one mimicry artist separate himself from the rest? But the one that I like the best is Fardeen Khan. I had done it during Indian Idol auditions कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता ना, kind of. So what is that one thing I would say? It's about being relevant every time. So I think it was in 2008 तभी जब मेरा वीडियो गया था वायरल इंडियन आइडल का, एंड उस वक्त तभी ऋतिक रोशन की ऋतिक रोशन की वॉइस में कोई बात नहीं करता था, शाहिद कपूर कोई नहीं करता, फरदीन नहीं करता था. So I think it's about being relevant because you have to imitate people. I love to imitate actors जो अभी के हैं, be it Ranbir, be it Ayushmann Khurrana. So now also I'm practicing, all the new voices, and I think that is one thing which always keep you, in the market. You have to be in the market. You have to be exclusive, I would say. So and ऐसा नहीं कि पुराने फिर जो मैं करता, जैसे आमिर खान, now also I practice for आमिर खान. उनकी voice में I imitate and I try because now उनका जो age है, I have to match that. Now it is not a young Amir Khan, it is थोड़ा सा old Amir Khan, so थोड़ा सा base आ गया है voice में. So I have to वो सारी चीजें देखनी पड़ती है. But it's all about being relevant, I would say. Like right now I'm trying to pick up, people are telling me to go for Sushant Singh Rajput, उनकी भी mimicry try करो. Then I'm doing Ayushmann Khurrana की mimicry. So recently I've done something for Ayushmann Khurrana also. There was nobody who was able to do it, so I cracked it because I was trying it. So that is like, the best part is अगर relevant रहोगे, exclusive रहोगे, तो it is you are in the market. हमें पता है आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी बहुत अच्छी करते हैं मिमिक्री, एक बार करके दिखा दे थोड़ा बहुत सैंपल. डॉक्टर साहब, अगर आयुष्मान भी अगर आप ऐड करें तो इट विल बी जस्ट 2 lines, इट विल बी ग्रेट. आयुष्मान थोड़ा सा, आयुष्मान का तो जैसे नवाजुद्दीन का बोले कि आज तो आके बहुत मजा आ गया, इधर आप लोग सब लोग बैठे, इधर 3-4 लोग मेरे को देख रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, पर फिर भी चलो मजा तो आ रहा है कि नहीं, बाकी सब लोग भी देख रहे हैं कि नहीं, चलो देखो फिर आप लोग. सुपर, वाओ टू गुड. अनिल भाई, एक सवाल आपके लिए है. कभी ऐसा हुआ है आपने लाइव पब्लिक के सामने कोई जोक क्रैक किया और हंसी नहीं आई लोगों को? हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है. आई एम श्योर किसी भी एक्टर बिल्कुल होता है. मैं इनफैक्ट क्योंकि लोगों के बीच में जाके करता हूँ, तो मैंने एक बार ऐसा एक रिस्क उठाया था, और मैंने वो तभी, ये बहुत शुरुआत की बात है, तब मैं कैरेक्टर्स कम करता था और उस समय मैं आर्टिस्ट को इमिटेट ज्यादा करता था. तो मैं जैसे सुमित जी करते हैं, तो मैंने वो जॉनी लीवर का एक एक्ट उठा लिया था. मगर मैं इतना घोंचू हूँ कि मुझे मैं ये नहीं सोचा कि यार पूरी दुनिया आजकल देखती है यार, सबको पता होता है कि जो किसका है, ये किसका है, इट्स नॉट ईजी टू गेट अवे विद. लेकिन वो मैंने उनका उठाया, और मैं जॉनी लीवर का एक एक्ट था. जॉनी लीवर इज जॉनी लीवर यार. और मैं अभी नया चूजा एकदम, अभी इवेंट करने शुरू किया. तो हाँ, मैंने वो ट्राई किया. भाईजा पूरी पब्लिक ऐसे बैठी हुई, एक ताली तो छोड़ो, किसी मुंह में स्माइल ही नहीं है, और मैं ओवर एक्टिंग कर रहा था. तो जो ऑर्गेनाइजर था
मैं खुद, और क्या होता है आर्टिस्ट को खुद रियलाइज हो जाता है यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ शायद लोगों को अच्छा लग रहा है, वो ऑटोमेटिक आपके दिल में समझ में आ जाता है। तो मुझे समझ में आ गया प्लेन, और यहाँ पे समझना छोड़ो, साफ दिख रहा है, उसको कोई दर्श नहीं रहा है, क्योंकि सबने वो शायद एक्ट देखे हुए हैं, सबको पता है। मैंने जब ये एक्ट खत्म हुआ है, मेरे को इतनी शर्म आई कि मैंने ऑर्गेनाइजर से कहा कि भाई तू मेरे को इसके पैसे मत दे, आई एम वेरी सॉरी यार, आई कैन नॉट मीट योर एक्सपेक्टेशंस, और मैं चला गया। लेकिन उसके बाद में मैंने रियलाइज किया कि मैंने शायद कुछ ज्यादा ही हैवी ले लिया, बट नाउ आई चेंज द स्ट्रेटजी, और मैं फिर थोड़ा सा कैरेक्टर्स में घुसा, फिर लोकल लैंग्वेज, लोगों के साथ कैसे स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन में उनकी भाषा में बात करना है, सो दैट आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो वो शायद बहुत अच्छा हिट हो गया, एंड आई थिंक टचवुड लोगों का प्यार मुझे बहुत मिलता है, सो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू अनिल भाई। मेघना जी, आपके लिए एक सवाल है कि आपने हॉलीवुड के लिए आप जो वॉइस ओवर देते हो, एंड दैट इज एक्चुअली इन इंग्लिश, और वो आपको जो मिलता है हिंदी में, तो आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, कि आपको पता है वो क्या चल रहा है एंड यू नीड टू लिप सिंक ओवर दैट। कुछ एक्सपीरियंस आपका शेयर करें ना हमारे साथ। Absolutely, it's very easy for us because हमें सब बना बनाया मिलता है, tracks are ready. So पायलट सुनना है आपको, अगर आप ठीक से पायलट सुनते हो और उसे फॉलो करते हो तो 50% डन। ओके, तो जैसे एक एंड पैन मैन है जिसमें हीरो सुमेध जी करते थे, और उसमें एक कैरेक्टर मैं भी करती थी, तो हम लोगों ने उन्हें हेमा मालिनी जी बना दिया था, और सुमेध उसमें एंड पैन मैन थे। So I was doing Monster Kid. भले जी, we can hear you. ओके, सो जैसे अभी इमेजिन करो कि मैं एक ऐसे लंबी चोटी पहन के, पंजाबी ड्रेस पहन के स्टूडियो में जा रही हूँ, और वहां पे मैं पैमेला एंडरसन के लिए डब कर रही हूँ। ओके, तो इट वाज वेरी वियर्ड फॉर मी कि बेवॉच डब करना, एंड आई मतलब मैं बहुत ही सिंपल हम्बल फैमिली से हूँ, तो मतलब बेवॉच इज लाइक घर पे देखना भी मना है, वो मैं डब कर रही हूँ जाके वहां पे। So the moment I came back home, so मेरी आई मतलब मम्मी ने पूछा कि how was the experience, तुमने पैमेला एंडरसन के लिए डब किया, तो क्या तुमने सोचा कि उसकी आवाज तुम कैसे रिक्रिएट करोगी? तो फिर मैंने आई को बोला कि आई, आपको याद है हम लोग ने उस दिन चांदी की एक वाटी ली थी, कटोरी, तो उस पे आपने नाम लिखवाया था, और तब एक आवाज आ रही थी जैसे वो नाम लिख रहा था, तो मैंने वही आवाज थोड़ी सी इमिटेट कर ली। The stick was stolen from me, and Tammy Lee Jones from our Malibu mansion, and I feel really good. तो आई तो बहुत हंस रही थी, ऑब्वियसली मैंने थोड़ा सा एग्जैजरेट किया था, बट कहीं तो भी वो एक दिमाग में था कि वो जो उसकी टोन है, वो जो उसका एक ये है, वो पकड़ में आ जाता है। सो मेनी अ टाइम इट हैपेंस फॉर मी, जैसे अभी स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए आई डब फॉर विनोना राइडर, तो शुरू में वो आ नहीं रहा था, देन दे टोल्ड मी कि नहीं, आप ऐसे समझो कि ये आपके साथ हुआ है, मतलब जो स्ट्रेंजर थिंग्स में चीजें हो रही है वो आपके साथ हो रही है, और उन्होंने स्टूडियो का लाइट बंद कर दिया। सो इट वाज वेरी स्कैरी, और फिर देन एक्चुअली आई वाज स्कैर्ड, और फिर मैंने वो डब किया है जॉयस कैरेक्टर। आपको कुछ डायलॉग्स याद है? कुछ आप करके बता सकते हैं, आपको कोई डायलॉग याद हो? हाँ, पर आई डोंट नो, मतलब आप जॉयस, आपको पता है विनोना राइडर, स्ट्रेंजर थिंग्स किसी ने देखा होगा तो सब जो विल की मॉम है, विनोना राइडर तो मालूम है एक्ट्रेस। हैरी पॉटर में देयर इज दिस कैरेक्टर कॉल्ड मायूस मीना, सो शी हैज लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, तो वो इमिटेट करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि वो एक टोन में नहीं बोलती है। सो जैसे हैरी, पता नहीं, मैं तो यहीं पे खड़ी थी, लेकिन एक बुक मेरे सर पे गिरी, बस तुम कह सकते हो, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है हैरी। Very nice. सुपर। तो मुझे तो लगता है कि जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उनको खुद का बनाना पड़ता है। फॉर अस इट्स इजियर बिकॉज यू नीड गुड लिसनर। अगर पायलट ठीक से सुनते हो और उसे अच्छी तरह से फॉलो करते हो तो आई थिंक हाफ ऑफ योर जॉब इज डन। I would like to add in something here. आप लोग किसी भी गैदरिंग में जाते होंगे या कहीं भी किसी भी फैमिली मीट्सअप पे या कहीं पे भी बाहर कहीं पे, डू यू गाइज गेट फ्रस्ट्रेटेड और गुस्सा आ जाता है कि हर कोई मिलता है तो ये कहता है इसकी आवाज निकाल के दिखाओ, इसकी आवाज निकाल के दिखाओ, इसकी मिमिक्री करके दिखाओ। बिलीव मी, आप मतलब यकीन नहीं करोगे, मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मतलब सिर्फ बच्चे मुझे चिपक जाते हैं, सारे बच्चे, और उनको लगता है कि उनके हाथ में रिमोट
कंट्रोल है, और वो फिर मुझे बोलते हैं आप ये करके दिखाओ, अब वो करके दिखाओ, ये डायलॉग बोल के दिखाओ, और सारे कार्टून करवाते हैं मुझसे। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता था, वाओ हाउ पॉपुलर आई एम। बाद में हाय हाय आ गए बच्चे, अब तो छोड़ेंगे नहीं। तो बट देन आई रियलाइज कि उसके बाद जो उनको खुशी मिलती है, दैट इज प्राइसलेस। What about you, Dr. Singh? ये डॉक्टर साहब, हाँ, yeah. No, I love doing it. हमेशा मुझे बोलते तो I always I'm okay. आप जो बोलो whichever voice I said I agree to it. I हमेशा बोलता हूँ। डॉक्टर साहब आपके लिए मतलब एक इट्स सवाल सो है। बैड इन मुंबई कि अगर मैं जनरल स्टोर भी जाऊँ कुछ लेने के लिए तो कि मीना जी का कुछ हाँ, Meena ji, your voice we We had lost lost it. you Can you just say somewhere, again? Yeah, we lost you in between. You said you go to a I general said- store. Yeah. हाँ, तो वो जो दुकानदार है वो भी बोलता है कि ये लाइन करके दिखाइए। हाँ। अच्छा। फिर पैसे लेता है वो आपसे जो आपने परचेज किया होता है? हाँ, दे दो। मेरे केस में क्या होता है मालूम है कि कई बार मॉल्स में आप कहीं पे हैं तो आपने उनके इवेंट्स होस्ट किए, उनके इवेंट्स में यू बीन पार्ट, तो मिलके अनिल भाई कैसे हो, हे अनिल हाउ आर यू डूइंग, तो मेरे को तो ऑब्वियसली आप स्टेज पे अकेले तो आप 3000 क्राउड 2000 क्राउड में थोड़ी ना पहचानोगे कौन है, बट दे वुड रिकॉग्नाइज यू। तो वो अरे मिलके फिर मैं पूछने लगता था उनसे, अरे कहाँ मिले हम, कैसे मिले, अच्छा कौन सा इवेंट होगा, आपको याद है आपने वो किया था, अरे ये वो XYZ। अब मैंने वो मेरे को समझ में आ गया थोड़े थोड़े समय बाद कि भाई ये अब मुझे जो भी कोई नया स्ट्रेंजर मिलता है, ओ अनिल भाई हाउ आर यू, बस मैं ऐसे मिलता हूँ उससे कि भाई मेरा बड़ा अच्छा दोस्त, अरे कैसे हो दोस्त, अरे फैंटास्टिक यार, मजा आ गया, कैसे सब बढ़िया यार। तो उसको लगता है कि हरीश मतलब मैं क्योंकि आधा घंटा 15 मिनट खड़ा हुआ हूँ उसके पास में, अरे कहाँ मिले थे, कहाँ, अच्छा इधर, अब मैं कट डाउन, अब मुझे समझ, और मैं लेट हो जाता था हमेशा, तो मैं अब मैंने बेस्ट तरीका जैसे ही मिलता, अनिल भाई कैसे हो, अरे दोस्त कैसे हो, वाह गुड टू सी यू मैन, और सब बढ़िया ना, फैंटास्टिक लवली सीइंग यू, बस निकल लो। so yeah, it happens with me that way. सुमित, आपको किसी ने पूछा है अरे पहचाना, ऐसा किसने बोला है आपको? पहचाना सुमित, पहचाना? पहचाना, हाँ। मैं पूछता मेरे को पहचाना ना तुमने, बस तो क्या वो इम्पोर्टेंट है, मुझे पहचान ले बस ना। लेकिन एक बात मैंने देखी है डॉक्टर सुमेत की कि यू आर लाइक, आप इतने लोगों की मिमिक्री करते हो, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो आपके अंदर आ जाते हैं ना, यू स्टार्ट दैट कैरेक्टर सिंक्स इन you imbibe, you imbibe, yes. Yeah, तो आपको देखते ही पता चलता है ये आमिर खान है। Yes, आमिर खान का बहुत है, आमिर खान का नेचुरल टोन मेरा जो नॉर्मल जब बात करता हूँ उससे तो मैच हो ही जाता है, क्योंकि मैं दैट इज द फर्स्ट वॉइस आई बीन डूइंग, एंड नाउ आल्सो पीपल लाइक दे नो मी बिकॉज़ ऑफ आमिर खान ओनली। बट आई लव परफॉर्मिंग फॉर ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन की वॉइस मुझे बहुत, like if you ask me which is my favorite voice is Hrithik Roshan, yes. कैसे करके दिखाएं। So what are you doing? Why are you asking me to do this? My voice is completely different. It's just completely fantastic. Thank you so much. और कोई मिल गया वाला ऋतिक रोशन? वो कैरेक्टर मुझे करना इतना अच्छा लगता नहीं है, I love doing the normal Hrithik Roshan generally. Okay. Like that character is like इनफैक्ट मुझे लगता है डॉक्टर साहब नॉर्मल करना और डिफिकल्ट होता है than, yes, you know, yes. it's much Because more when difficult. if people ask me how do I learn, I pick up a voice, I pick up a voice from the interviews. So generally I see the interviews, like even Hrithik Roshan मैंने interview से pick up किया था, अनिल कपूर मैंने जब pick up किया था, so it was from his interviews जब वो बात कर रहे थे ना, there was a time when Anil Kapoor used to do many Hollywood projects, right? So तो जिस तरह से बात करते थे, he has just kind of ना कि ऐसे बात कर रहा हूँ मैं, किससे बात कर रहा है, जो भी हो रहा है, ये हो रहा है, you know, people should crowd me and do this and that and that and this एक एक्सेंट आ गया था उन लोगों को, इस तरह से बात करते थे वो। So watching their interviews से मुझे बहुत मिलता है, because when in the interviews they are themselves, you know, वो उन लोग जैसे नॉर्मली वैसे बात करते हैं, and then so once you pick up that the voice, then characters उन्होंने जो किया हो तो आप easily कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। और कोई एक ऐसा आर्टिस्ट है जो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है and I should do and it's really difficult to imitate him? अभी तक I am not able to crack Salman Khan. Okay. It's very difficult. Yeah, Salman Khan करते, but I want to get that perfect tone of Salman Khan. वो मैं अभी तक नहीं कर पाया। And then मेघना जी, आपके कोई future projects which is you're very excited about जो होने वाले हैं? Yes, but many a times we signed non-disclosure agreement with them, so it's very difficult कि social platform पे अगर बोलो then you know it is allowed or not, because this is the content जो release नहीं हुआ है,
and you dub that, you see that. So basically you're not even allowed to discuss at your home. So you're very excited, you know what is the end or climax of that story or project, but then you're not allowed to talk. But many a times many artists, they post on their social medias, and they show some clips which are actually not allowed. पर कई बार ऐसे होता है from the artist side कि आप बोल देते हो. So unless it is released, you're not supposed to say anything about it. That's what I feel. मतलब ये ethics होने चाहिए, which are Right. not followed actually. But I love this idea. मतलब अगर मुझे लाइफ आगे काम भी नहीं तो मैं बोलूंगा कि आई हैव अ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कुछ बोल नहीं सकता. फिलहाल कुछ काम नहीं, लेकिन मैं बोल भी नहीं सकता. Very nice. नहीं. Thank you so much. No. Something, I but mean, it's about disclosure agreement. I can't say anything. I can tell you one thing कि because of this isolation and COVID situation, काफी कम हो गया था. ओके मतलब Yeah. काफी 1-2 महीने तो घर पे बैठ लिए, मजा आया कि अरे वाह इतनी लंबी छुट्टी मिल गई, ये वो फलान ढिकान. उसके बाद एक्चुअली आई स्टार्टेड अपना स्टूडियो घर पे एक सेटअप बनवा लिया विद द हेल्प ऑफ माय Yeah. हस्बैंड, एंड आई स्टार्टेड डबिंग बिकॉज देन आई थॉट कि इतनी लंबी छुट्टी नहीं हो सकती. देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि अरे काम तो चलना चाहिए, होना चाहिए. अगर तुम नहीं करोगे तो देयर आर लाइक 5000 डबिंग आर्टिस्ट ओवर देयर, कोई रुक है नहीं तुम्हारे लिए. सो यू हैव टू कीप अप विद दैट. So in this isolation, I खुद का सीख लिया, न्यूएंडो सीख लिया, फिर माइक नया मंगवा लिया, ये करते वो करते. So I think everything is changing now. So घर पे बैठ के भी काम हो सकता है और actually काम मिल भी रहा है. So it's a very good Yeah. thing कि dubbing industry बंद नहीं हुई है, voice overs are still on. Right. Absolutely. Right. और डॉक्टर साहब के तो बाल बता रहे हैं कि So when lockdown they खत्म होना say चाहिए. that when they say when you don't have work, you have to work on yourself. So that's the most important. Correct. अनिल भाई, एक सवाल आपसे था. जी. What is the biggest crowd you have ever performed in front of? बिगेस्ट क्राउड यू कैन से, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जहाँ पे 2-3 हज़ार 4,000 5,000 तक तो रेगुलर वाले हैं जो साल में आते ही आते हैं. मगर जो सबसे बड़ा क्राउड जो मैंने हैंडल किया है अब तक वो तकरीबन रफली अबाउट 10,000 पीपल, जिसमें मतलब हर तरह के ब्लू कॉलर भी थे, वाइट कॉलर भी थे, मतलब पूरा फुल ह्यूज गैदरिंग. तो 10,000 क्राउड मैंने स्टेडियम में हुआ था ये? हाँ बिल्कुल. और प्लस उनके अपने खुद के भी कैंप्स हैं. देयर आर लॉट ऑफ कैंप्स हियर जो लाइक अगर आपने देखा हो मिर्दिफ और उसके आगे वो खवनीज वगैरह की तरफ, तो वहाँ पे बड़े कैंप्स हैं जहाँ पे दीज पीपल आर लिविंग, जहाँ पे उनकी खुद की अपनी कम्युनिटी पूरी बड़ी है, स्कूल्स भी है अंदर, हॉस्पिटल भी है अंदर, तो वो पूरी कम्युनिटी वहीं एक साथ इकट्ठा होती है. सो दैट मेनी ह्यूज सेटअप. तो 10,000 का तो तक बनाएंगे. 10,000 is really good. Yeah. डॉक्टर सुमित, एक सवाल आपके लिए है कि ह्यूमर इज ऑल अबाउट कॉमिक टाइमिंग, ठीक है? Yeah. तो कॉमिक टाइमिंग और ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है? उसी टाइम पे आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको आ गया, आपने जैसे अभी आपने 1-2 बार किया. Right. यू थिंक दिस इज एन इनबॉर्न टैलेंट या कोई सीख सकता है ये चीज? So this तो ये you have to develop, like ये तो actually my forte. जैसे people used to ask me when I went for Indian Idol, तब मैं सिर्फ mimicry करता था. I used to just imitate this dialogue जो उनकी voice से बोलता था. But then in our industry यहाँ पे during live events there is nothing called as an entertainer kind of thing. आपको as a comedian ही categorize किया जाता है. So even if you are a mimicry artist, अगर आप voices भी करते हो तो आपको comedy करनी ही पड़ेगी. So this is over the years probably I feel कि started in 2010. Now अभी कहीं जाके थोड़ा एक पंचेस बोलना या जैसे impromptu कुछ बोल दिया, अभी मैंने जैसे बोल दिया, तो अभी धीरे-धीरे डेवलप हो गया है. But this is how it is. Like I think it is developing still now. But yeah, with respect to voices, yes, that is something which I had it, and it is it's a inborn talent for me. I thank God for that. But I think I would like to add one thing here. मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब will agree with me कि spontaneous humor कॉमेडी जो होती है वो I don't think कि आप उसे कहीं सीख सकते हो. वो आपके अंदर है. If you have it in you, you have it in you. आप कहीं से सीख नहीं सकते. Voice modulation थोड़ा बहुत still you can work on it and still you can learn. But comedy I don't think that if you have that sense of timing, you have it. If you're meant for it, yes. Of course, if you're meant for it, so you will be. Of course. Correct. I agree. Yes.
बट बिकॉज मेघना अभी जी- इतना प्लेटफॉर्म खुल चुका है, लाइक सॉरी आई एम सॉरी, नहीं इतना बोलो भी प्लीज मतलब इतने सारे मतलब लाइक अभी ना पीपल व्हेन दे सी सो मेनी कॉमेडियंस आर परफॉर्मिंग, ओपन माइक्स हो रहे हैं, व्हेन दे सी ऑनलाइन, देन दे रियलाइज कि ओ इवन आई कैन डू दिस, दे सी अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझ में भी वैसा टाइमिंग है करके मैं भी ऐसा बोलते बोलते हो सकता है. सो आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म्स आल्सो आर गिविंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीबॉडी टू कम एंड परफॉर्म इन आल्सो. हो गया मेघना जी, हो एक सवाल गया. एक सवाल आपके लिए था कि सिंस यू डू सच अमेजिंग वॉइस मॉड्यूलेशन भी आप कर रहे हो, आवाज मोटी पतली सब, यू नो यू हैव गॉट सच अ गुड कंट्रोल ओवर योर वॉइस, एंड आई बिलीव आप सिंगिंग भी करते हो, तो कभी आपने वो कार्टून वाली वॉइस में आपने हिंदी गाना गाने की कोशिश की है, या आपने किया है तो कैन वी जस्ट सी इट लाइव राइट नाउ? शुरू में जब गाती थी तो सुर में था, बट सिंस आई डू लॉट ऑफ एनिमेशन वॉइसेस एंड कैरेक्टर वॉइसेस, तो अब मेरे सुर उतने टिकते नहीं है. सो ओवर द पीरियड मेरे को समझ में आ रहा है कि अब मेरे सुर इज नॉट प्रॉपर जितने पहले लगते थे, या अब मैं उतना नहीं कर पाती हूँ. सो जितना मेरा कैरेक्टर गाता है बस मैं उतना ही गाती हूँ. सो मतलब आई हैव रियलाइज कि प्रॉब्ली मैंने बहुत ज्यादा अपने वोकल कॉर्ड्स का यूज करा है, इसलिए शायद हुआ है या पता नहीं, पर अभी ठीक से नहीं गा सकती हूँ जितना पहले गाती थी. पर आई कैन डू वन सॉन्ग फॉर यू गाइज जो कि श्रेयस तलपदे ने लिखा है. लाइक 25 years बैक वी डिड दिस प्रोमो टुगेदर, एंड हम लोग सब एकांकिका कॉलेज और वो सब साथ में रहते थे, तो तब एक गाना बनाया था जिसके लिए प्रोमैक्स का अवार्ड भी मिला था हमें. So I'll sing that song for you. श्योर शाहरुख खान मैं कूल हूँ, करता ब्यूटीफुल हूँ, हल्का तुमका माधुरी का प्यारा चुम्मा दे गोविंदा, नाचे थोड़ा संजू बाबा, आमिर बोले अब तू आजा, आने वाली 15 फिल्म के गाने होंगे और भी बेहतर, सुनिए सारे हिट्स इस पर, पकड़ने का नो चांस. वाह वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने जो भी किया, जैसे गाया आपने, बहुत अच्छा. आई लव यू. Thank Very you, nice. beta. Thank you so much. Okay, we are reaching the end of the show. हम एक काम करते हैं. I believe यहाँ पे सारे ही सिंगर हैं. डॉक्टर सुमित, आप इंडियन आइडल के ऑडिशन के लिए गए थे, तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, तो आप भी गाना गाएं, उसके बाद अनिल भाई गाना गाएंगे, and then we can close the show for today. अच्छा. Oh, I love imitating Abhijit Bhattacharya's voice. He's my favorite singer. तो उसका उनका एक बहुत एक सॉन्ग है जो मतलब very underrated song I would say. It's from a movie called as Yash. एक मूवी आई थी, उसका एक सॉन्ग है जो बहुत अच्छा है. It goes like this in Abhijit style. जिंदगी एक गीत है, इसे होठों पे सजा ले, गम हो या खुशी हो, प्यार से गुनगुना ले, दिन हो या रात हो, दिल की ये बात हो, कोई ना जो साथ हो, गाए जा. थैंक यू. वाह, सुपर. मैं भी थोड़ा मैं मतलब प्रोफेशनली नहीं गाता हूँ, शौक है मुझे, बट ये सभी ये जो सिचुएशन चल रही है कोविड की, तो मुझे लगता है थोड़ा एक इंस्पिरेशनल सॉन्ग अगर कुछ एक गा दूं मैं, सो आई विल जस्ट सिंग दिस वन. किशोर कुमार का मैं फैन हूँ, सो आई विल जस्ट से फ्यू लाइंस फॉर यू. रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, साथी न कारवां है, ये तेरा इंतहा है, यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे, देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही. थैंक यू. Very nice. Very nice. Right. Wow. Before we close, Who's I just next?
Yeah, even Yusuf bhai हो and गया। Murtaza, I think यार कुछ तो नाम तो बहुत दूर दूर तक हमारे कोई Let's सुन end the show on a high note. Yusuf plays very well, right? Very good. You Yes. play yeah, very he well. plays. Yeah. Yeah, I do play music Good instruments. keyboard. I play multiple instruments, Wow, yeah. very nice. Guys, we have a Wow. few comments and questions from our audience who are watching us live right now. Let us take a few questions and then we end the show. So I'll just Okay. push a few questions. ये तो डॉक्टर साहब के लिए क्वेश्चन है ये। डॉक्टर साहब आपके लिए सवाल है। Right, I have done जो Roar of the Lion जो था, I have dubbed it in Hindi and but exactly धोनी की voice मुझे इतनी अच्छी से आती नहीं है. It was very normal voice. You know, मैंने जिस तरह से बात की थी वो इस तरह से बात की थी. धोनी ऐसे कुछ मैंने बोला था इस स्टाइल में, थोड़ा सा पतली voice करके. I had dubbed for him, but Nice. अभी इतना perfect नहीं है वो. So, but yes, I have done for Dhoni. Do we actually connect our life problems to make it more humor? Or Do we actually connect our life problems? connect our life problems? To make it नहीं, more मेरी एक ही प्रॉब्लम, मेरी बीवी फिलहाल वो कमरे में बंद है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ इशू है। मेघना जी, you would like to answer that question? हाँ, मतलब जैसे अभी कोविड सिचुएशन के लिए जो फिल्म्स बनाई गई, सो दैट्स अ प्रॉब्लम, बट इफ यू टेक इट पॉजिटिवली तो शायद आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो. सो मुझे लगता है कि जो कॉमेडियंस टू किसी को हर्ट करना या ऐसे कुछ नहीं होता. इट जस्ट प्योर एंटरटेनमेंट. पल के लिए हंसो, 2 पल के लिए हम एंटरटेन कर पाए. सो आई थिंक प्रॉब्लम के लिए think it's not that comedy life के problem से होती है, but that problem. Okay. Sometimes doing mimicry, do you lose your real self? Mustafa has asked this question. Do you get into characters so much Do you that get so much? ये डॉक्टर साहब आपके लिए सवाल है। होता है। No, actually, ये जो सवाल है, आई थिंक जहाँ तक मैंने एक किस्सा सुना था मैंने सुदेश भोसले जी का, तो उनको भी बिकॉज आफ्टर डूइंग अमिताभ बच्चन वॉइस सो मच कि एक बार ऐसा उनको भी आया था कि लेकिन कि मेरा आई एम लूजिंग माई सेल्फ, लेकिन मेरी ओरिजिनल वॉइस, बट देन ही वेंट एंड आस्क्ड, आई थिंक आई डोंट नो, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई किसी से बात की थी कि ऐसा हो रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक, मुझे क्या करना चाहिए? तो ही गेव अ वेरी गुड रिप्लाई टू सुदेश जी, एंड ही सेड कि मुझे बताओ कि पूरी दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो खुद की वॉइस छोड़ के बाकियों की आवाज निकाल सकते हैं? There are very few, right? So you are the privileged one. So just continue what you're good at and just do it. Yeah, even coming to that, to characters जो मैं करता हूँ, बिहारी, बंगाली, गुजराती, फिलिपिनो, अरब और ये, तो नॉर्मल रूप से कभी कभी घर में करते रहते हैं. खाना मांगना तो ऐसे मांग लिया, आज बिहारी बन के बाद पूछ लिया, बंगाली बन गए, कुछ बन गए, बट आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उस कैरेक्टर्स में घुस गया हूँगा कि मतलब, बट ये it is, हाँ, it is it's there in after you. yourself will come, and आप कितना भी Yeah. कुछ भी करो. I had read this book on creativity scholars कि उसमें हुआ था, उसमें लाइन लिखी थी कि it will come. आप कितना भी उसको ये करो, but there is something of you which will always be seen in that Come. character, even if you're doing तो it. उसके बाद फिर पैसे नहीं मिलते, नहीं Yeah, sorry. उसके बाद पैसे नहीं मिलते. अबे ये तो ओरिजिनल है यार, ये तो इसका तो ये तो है ही नहीं, ऋतिक रोशन ये तो है ही नहीं. और डॉक्टर साहब के बाल भी बता रहे हैं कि बेटा लॉकडाउन खुल जाना चाहिए अब जल्दी से. डॉक्टर साहब नहीं, ये तो इनफैक्ट मैंने से बाल कटा है और बहुत बढ़ गए थे मेरे. और अंदाजा तो किसी ने बाल कटे भी हैं, पता भी नहीं चला है। पता भी नहीं बाल कटे चला. पता भी नहीं चलता है, पता नहीं चलता है. तो डॉक्टर साहब के सामने मुंह खोलने का मतलब है कि डॉक्टर साहब देखो दो धारी तलवार है. डॉक्टर साहब के सामने कोई बोलेगा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि डेंटिस्ट है, और अगर और ये मेरा मुंह खोलेंगे बिल्कुल- तो पैसे लेंगे Yes. क्योंकि आर्टिस्ट है. डॉक्टर साहब तो Yes. मतलब कमाल है आप डॉक्टर साहब. Absolutely. अच्छा, आज का शो हम क्लोज करेंगे. मैंने डॉक्टर सुमेध का एक वीडियो देखा था जिसमें वो डॉन बने हैं अजय देवगन स्टाइल में. अच्छा, आपको याद है? हाँ, आपने अजय देवगन के स्टाइल में अपने डॉन का किया था. Do you Oh, remember that? अच्छा It was a public अच्छा. performance. इमरान हाशमी एंड अजय देवगन वाला. अजय देवगन है. इट वाज पब्लिक परफॉर्मेंस. काफी छोटी-छोटी क्लिप्स हैं आपकी ऑनलाइन एंड दैट आल्सो हैव गॉन वायरल. आपको याद है जब अजय अच्छा, देवगन का डॉन जो कैरेक्टर भागता है. हाँ, No, would you be no able to do it appointment. right now? By running, I Just- can't do that. Yeah, so Ajay Devgan, they have a style. Like तो अजय देवगन जनरली जब करते तो ना गर्दन नहीं करके ना ये लाइक कि ऐसे करके भागते हैं, लेकिन कि something like that. ऐसे no appointment, no commitment, only punishment. मैं एक ही बार बोलता हूँ और दूसरी बार बोलने के लिए मुझे जिंदा रहना पड़ेगा.
तो सुनना साले, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन अब उन 11 मुल्कों की पुलिस में ये बाजीराव सिंघम भी है. आली रे आली, आता त्या डॉनची बारी आली, कारण आता माझी सटकली. थँक यू. अरे क्या बात है. वाह 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 वाह. वाव, सुपर्ब सुपर्ब. अरे डॉक्टर साहब, अजय देवगन का मैसेज भी आ गया मेरे पास कि यार इनसे बोलो ऐसे ना करें, मेरी जॉब खतरे पे भाई. मैसेज आया नहीं, कसम नहीं. से. और बहुत से लोग क्या आएंगे. So guys, thank you very much. Thank you for taking time for coming. Meghna ji, Thank you so much, Yusuf. Thanks a lot, Murtaza. Thanks a lot, everybody. Anil bhai, thank you so much for entertaining all the crowd. Thank you Yusuf bhai, thank you Murtaza. Lovely. Thank you Meghna so much. and Maza aa Dr. gaya. Saab. Guys, Truly Thanks, really Anil. enjoyed. Maza aa gaya. Thank you brother, and let's stay in touch. And Thank I you. hope people also Sure, have bye. enjoyed it equally. So thank you. Keep spreading Great. smiles. Yes, Good evening. thank Thank you. you. Same here.